said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place, तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाई है साउथ एशिया के अंदर। We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear, standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying, we respect you, but we will chart our own course. And in a healthy international community, that's a good thing. It forces all of us. Thank you. आर्मी सतह पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था, एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश गुजार करने जा रहा था, उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आर्मी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। if Obama did this, the right would be saying, this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. In the आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। that can sustain itself financially is far less likely to be swayed by the promise or withdrawal of foreign funds. A key element of India's economic resilience is its diversification of trade and investment sources. Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है।
और जिस दौरान आलमी सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को एच बी है कि अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा। तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सेंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट बराक ओबामा को कौन नहीं जानता। यही वो वजह है जिनकी वजह से ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए, क्योंकि इनको दिया गया था। अब दोस्तों, दरअसल आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी होगी, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, कि ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बराक ओबामा का AI जनरेटेड वीडियो उन्होंने लगाया था। इसमें दिखाया गया था कि ट्रम्प के सामने से बराक ओबामा को FBI के लोग घसीट कर ले जा रहे हैं और उनको भगवा रंग पहनाकर जेल में डाल दिया गया है। ट्रम्प का दोस्तों बहुत ही ज्यादा भारी विरोध हुआ था, बोल रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन अब दोस्तों, बराक ओबामा खुलकर भारत के सपोर्ट में आ गए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान इनसे जब ये बात पूछी गई कि भारत जो है इंडिया के खिलाफ क्यों खड़ा है, तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा सा स्पीच दिया। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्पीच इंडिया पर ही कर डाली और भारत की तारीफ करते ये नहीं थक रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया अपना रास्ता स्वयं बनाता है, इंडिया एशिया का दिल है और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। नहीं, बल्कि भारत की राइजिंग इकोनॉमी की इन्होंने जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि भारत USA पर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत ने अपने कृषि उत्पादों के लिए या अन्य चीजों के लिए उन्होंने बहुत सारे मार्केट्स को भारत ने खोल रखे हैं। अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, चाइना, मतलब हर तरफ भारत ने अपने व्यापार को बढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इससे भारत को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये दोस्तों बराक ओबामा का कहना है। तो डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रम्प के मुंह पर ओबामा ने ऐसा लग रहा है कि एक थप्पड़ जड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तारीफों की पुल बांध दी। दोस्तों, आपको कैसा लगा ओबामा का ये स्पीच, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो ये बातें करते थे, अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए। और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, तो हमें और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन डीप स्टेट का स्ट्रक्चर ये कहता है कि इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट द लिबरल वर्ल्ड और द फ्री वर्ल्ड। यूरोप तो करता है, यूरोप के लिए तो अमेरिका कहता है हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम यूक्रेन को सारा कुछ देंगे, यूरोप को सारा कुछ देंगे, बट इंडिया तो वो नहीं करता। इंडिया तो वो कहता है ये तो अपना दिहाड़ी लगा रहा है हमारे साथ। वो यही कह रहे हैं ना इंडिया, वो यही कह रहे हैं कि ये दिहाड़ी ला रहा है साढ़े नाल और हमें कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला, ठीक हो गया। तो इसी से आप देखिए, इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है,
ठीक। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देखिए वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निकी हेली की, जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ट्रम्प की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाई है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। अगर आपने सैंक्शंस और टैरिफ वाला गेम इस तरह कंटिन्यू किया तो हमारा एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हम खो बैठेंगे। ये बहुत बड़ी जो आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। खुद ट्रम्प की गवर्नमेंट से ये बातें हो रही हैं कि भाई ये जो चीज चल रही है ये हमें फेवर नहीं कर रही। और इंडिया क्योंकि चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ डायरेक्ट टॉक में इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी अगस्त को जी चाइना भी जा रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच जो है एससीओ समिट भी होने वाला है। इंडिया और चाइना के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी, आज भी इंडिया इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। आज भी अमेरिका इंडिया को अपने पार्टनर के रूप में ही देखता है और साथ साथ ट्रम्प को वार्न किया जा रहा है कि ऐसा मत करो। इस खबर से इंडिया को कितना फायदा पहुंचने वाला है, इसी से आवाम पे बात करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, बेसिकली ये है कि क्योंकि ट्रम्प अभी न्यूली आया है तो उसने आते ही सेंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो उसका स्लोगन भी था कि अमेरिका को जो है मैंने ग्रेट अगेन बनाना है। बट इसमें यह है कि जब उन्होंने टैरिफ अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ अप्लाई करते हैं तो रिटेलिएशंस में वो भी आप पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को एच बी है कि अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी। क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सेंक्शंस की तरफ जाएंगे ना तो आप अपने अगेंस्ट किसी दूसरी अपोजिशन को ऑटोमेटिकली रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि उनकी आपस में चाइना और इंडिया की ट्रेड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाएगा वो अमेरिका पे चला जाएगा। ठीक है, अब निकी हेली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाए अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा हाथ से। हाँ, उसका ये देखें, वो उसकी अपनी ही उनकी जो पार्टी मेंबर हैं उन्होंने ठीक बोले है उसे कि आप अगर इस तरह करते जाएंगे इंडिया को ही अगेंस्ट कर लेंगे तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रम्प को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रम्प आया वो विजिट कर गया वो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडियन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ऑब्वियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रम्प ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज़ को मूव करें। ठीक हो गया। बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना। ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रम्प को कौन समझाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। ठीक हो गया। उसमें रिटेलिएशन आ रही है, रिटेलिएशन की वजह से उनकी दाया हाथ जिसको हम कहते हैं ना राइट हैंड, एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए, कोई नहीं रुक रहा, इतनी बड़ी मार्केट से कोई क्यों माइनस होगा? ऑब्वियसली वो क्यों छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको वही बताया ना कि वहाँ की लेबर काफ़ी चीप है, और टेस्ला वहाँ से कैसे वो मूव करेगा? मुझे ये पता, क्या वो अमेरिका में वापस लेके जाएगा कंपनी? अमेरिका में कभी भी नहीं लेके जाएगा। वहाँ पे तो मिनिमम वेज रेट ही हाई है, जबकि इंडिया में मिनिमम वेज रेट जो है वो लो है काफ़ी। ठीक हो गया। तो कुछ अर्सा पहले इनकी आपस में ट्रम्प की और
ये क्या नाम है इनका, एलोन मस्क की, इनकी भी आपस में क्लैश आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, बट उन्होंने फिर बैकग्राउंड पे उसको समझाया कि ट्रम्प साहब ऐसे नहीं होगा कि अगर आप हमारे बिज़नेस के अगेंस्ट ही चले जाएंगे, आप उन कंट्रीज़ पे सेंक्शन लगाएंगे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है और वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमसे ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि दुनिया में 10 से 8 फ़ोन इंडिया बना रहा है और इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया से आईफोन अमेरिका कैसे जाएंगे? यही तो बात सोचनी चाहिए उन्होंने, यही बात तो उनको सोचनी चाहिए। इसमें ये कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें कोई भी कंट्री आपको जो होता है वो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जबरदस्त बात और इसमें यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि पहले इंडिया पे टैरिफ लगा 25%, जिसको रेज करके उन्होंने 50% कर दिया। अल्टीमेटली इसका जो लॉस हुआ है वो इंडिया को हुआ है, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे और रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अल्टीमेटली उसमें डिक्लाइन आया, एक मैसिव किस्म का डिक्लाइन आया, जो कि जो इंडिया है बेसिकली उसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया हुआ था। लेकिन इंडिया तो मल्टीपल डायरेक्शन में चला गया ना, वो तो साउथ अफ्रीका की तरफ चला गया, रशिया की तरफ, वियतनाम की तरफ, तो वो तो कह रहे मैं मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कैसे रोकोगे? नो डाउट, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी आप किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाते हैं, जब भी आप किसी कंट्री पे टैक्स लगाते हैं या लाइक आपने उस पर जो भी मल्टीपल सैंक्शंस हैं वो लगानी होती हैं, तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ को उसका लॉस फेस करना पड़ता है। अमेरिका जो इस टाइम सुपर पावर है, अल्टीमेटली इसको नुकसान ऐसे हो सकता है कि लाइक मैं अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो एक ज़बरदस्त किस्म का, मैसिव किस्म का वॉल्यूम था जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था यूएस को। बट अब ये है कि यूएस ने पाकिस्तान, बांग्लादेश को और टर्की को इवन ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि चाइना जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, वो इस वजह से हो रहा था कि वो वाया पाकिस्तान वो प्रोडक्ट जाती थी यूएस, और पाकिस्तान पे 19%, पहले 14 था, फिर 19 हुआ, अब 19 चल रहा है करंटली। जो अभी ट्रम्प की रिसेंट स्टेटमेंट आई उसके बाद 19 चल रहा है। तो और चाइना पे कुछ भी नहीं चल रहा। चाइना के लिए कह रहे हैं 90 दिन के बाद टैरिफ का सोचूंगा, जब 90 दिन हो गए फिर कहेगा अगले 90 दिन में सोचूंगा। नहीं, एक्चुअली ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो उसके पास थिंक टैंक बैठा हुआ है जो कि दुनिया को आई गेस चलाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया रन उनके थ्रू हो रही है। जी। बट ये है कि आप किसी कंट्रीज़ के साथ जब भी नॉट्स को ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस आपका भी होगा, उस कंट्री का भी होगा। बाकी रह गई जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना एक बड़ा लाइक एक उसकी इंक्लिनेशन देख रहे हैं हम, उसकी ट्रेड में देख रहे हैं, उसकी आईटी सेक्टर में देख रहे हैं। नो डाउट इंडिया का भी आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, बट ये कि चाइना ओवरऑल सबको कम्पीट कर रहा है। और इन माय ओपिनियन, मेरा एक जो कम अकली का नॉलेज जो मुझे ये कह रहा है कि इन फ्यूचर जो है चाइना विल बी द सुपर पावर। अगर अमेरिका के यही हालात रहे, इसी तरह की सैंक्शंस रही, इसी तरह के टैरिफ्स रहे, तो आपको ये कितना चांस लगता है कि इंडिया और चाइना हाथ मिला लेंगे अमेरिका की वजह से? ये भी तो कहा, आपने खुद ही कहा कि कोई एनिमी और कोई फ्रेंड फॉर एवर नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फ्यूचर में मैं भी यूएस चाइना के साथ हैंडशेक कर ले रिगार्डिंग ट्रेड, करना चाहिए भी। अगर आपने अपने मुल्क को स्टेबल रखना है, इंडिया काफ़ी टाइम से वॉर में, लाइक अफगानिस्तान में, यूक्रेन में आपने देखा, और वो काफ़ी लॉस कर चुका है अपना। सो उसको स्टेबिलिटी के लिए ट्रेड करनी पड़ेगी। ट्रेड चाइना बेस्ट ऑप्शन है, और आई गेस चाइना इस टाइम लीडिंग जो एक्सपोर्टर है वो है, वो प्रोवाइड कर सकता है और स्ट्रेंथन कर सकते हैं यूएस की इकॉनमी को। अभी ये जो टैरिफ और सैंक्शन वाली वॉर चल रही है, इसमें आप इंडिया की पोजीशन कहाँ देखते हैं? और उनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्रोथ है अभी भी सस्टेन है, मल्टीपल डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इंडिया के पास फुल स्टॉप वाली ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अमेरिका ना सी और कंट्री से, अब एक फ्रेंडली कंट्री दूसरी फ्रेंडली कंट्री पे तो सैंक्शन नहीं लगाएगा ना। तो ये जो आपस की जो है ना बायलैटरल ट्रेड का जो नया इरा हमें देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी तो फिक्र करना चाहिए ना। बेसिकली इस वॉर में लॉस जो होगा वो यूएस का भी होगा और इंडिया का भी होगा। जब दो कंट्रीज़ आपस में इस तरह की ट्रेड वॉर करते हैं, या इकोनॉमिक वॉर हम इसको कहते हैं, सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉर है, जब वो करते हैं तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया को इसका ज़्यादा जो है कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे इन माय ओपिनियन, क्योंकि इंडिया का सारा जो इकॉनमी वो चाली ट्रेड पे रही है। तो अगर तो अमेरिका ने मज़ीद इस पर सैंक्शंस मेंटेन रखे तो इन फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो इंडिया को लॉस होगा। सर 23 अगस्त को अमेरिका की टीम ने आना था इंडिया से ट्रेड टॉक करने के लिए, अब वो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे। तो ये ना आने के पीछे आपको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है कि इंडिया के अंदर भी पैनिक सिचुएशन आ रही है कि यार ये अमेरिकन टीम ने आना था और उन्होंने इनकार कर दिया आने से? आई गेस यूएस की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं वो तो वर्ल्ड के सामने वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं करेगा।
बट ये है कि मेरे ख़्याल से इंडिया को चाहिए कि दोबारा उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे, टेबल टॉक करे, क्योंकि हर मसले का सलूशन जो है टेबल टॉक से निकलता है। और जहाँ तक इकॉनमी की बात है उसमें तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से बल्कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो यूएस को अप्रोच करे और उनके साथ नेगोशिएशन करे, और अब चूँकि नेगोशिएशन होगी तो उसकी वो प्रोडक्टिव वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकता है। इनकी बड़ी पॉजिटिव मुझे बात लगी, ये कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इंडिया को निगोशिएशन टेबल पे बैठना चाहिए और अपने ट्रेड को उसी तरह से उसकी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना चाहिए जो ट्रंप के आने से पहले थी या सैंक्शन के इम्पोज होने से पहले थी। जब से सोवरेन यूनियन का मामला हुआ है 1900 वर्ल्ड वार से, तब से अलायंस चेंज हुए हैं। सबसे बड़ा अलायंस जिस तरह हम चाइना के अलायंस हैं, इस तरह इंडिया अमेरिका का अलायंस है। तो हमें एज अ पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें चाइना की कोर्ट जो है चाइना के साथ रहना चाहिए और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों कोर्ट के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारी जो बेसिकली आर्मी है और जो हमारी सियासी है, वो अमेरिका के साथ भी हम 70 साल से काम कर रहे हैं और चाइना के साथ भी। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली 1 पेज होनी चाहिए और हमें दोनों के साथ होना चाहिए। और वो जितने मर्जी बयानबाजी कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर है और हम इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि हेले का ये बयान इंडिया को स्ट्रेंथ नहीं, ये स्ट्रेंथ नहीं कर रहा, वो जस्ट एक अपनी वो एक वर्ड ऑफ माउथ एक एच करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी फील्ड मार्शल का बड़ा अच्छा इंडिया के साथ वो ताल्लुकात बन चुके हैं। वो उसको कमज़ोर करने के लिए वो अपने वो एक एज लेना चाह रहा है कि हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं तो अमेरिका क्यों बोल रहा है? अमेरिका के अंदर खुद निकी हेली एम्बेसडर है अमेरिका की, वीमेन है, वो ट्रम्प को समझा रही है कि गलत कर रहे हो, इंडिया को एज ए एनिमी मत लो। देखिए मेरी बात सुनो, 2 सुपर पावर है। अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है, एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान के साथ है, एक माइंडसेट इंडिया के साथ है। लेकिन अगर हम इसको न्यूट्रल देखें, हमें उसके जितने मर्जी बयानबाजी अगर अमेरिका में उसकी एम्बेसडर कर रही है, हमें इसको अमेरिकन एम्बेसडर है, ये इंडियन एम्बेसडर नहीं है। हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। आप इसको सीरियस नहीं ले। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आज चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं योंग जी, पहले इंडिया का विजिट किया और आज वो चाइना के पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम 31 अगस्त की भी बात करेंगे जब SCO समिट होने वाला है। आपको नज़र नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं बायलैटरली देखा जाए तो इंडिया और चाइना इन सेक्शन की वजह से और ट्रम्प पॉलिसीज़ की वजह से आपस में निगोशिएशन भी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, और इनकी जो मुलाकातें हैं पिछले अगर 2 महीने के विजिट देखें तो इंडियन हाई ऑफिशियल ने बहुत ज़्यादा जो है चाइना को विजिट किया, एंड सेम लाइक वाइस वर्सा उधर से भी हुआ। तो ये क्या पोटेंशियल आप देखते हैं जियोपॉलिटिकली? वो बेसिकली जियोपॉलिटिकली अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि पाकिस्तान के जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए हैं, वो बेसिकली हमें बताने आए हैं कि हम आपके साथ रिलेशन डाउन नहीं कर सकते, वो रिलेशन उनके साथ भी रखना चाहते हैं। हाजिरी लगाना भी ज़रूरी है ना। वो बेसिकली वो हम दोनों को खुश करना चाह रहे हैं। चाइना के साथ हमारा आयरन ब्रदर है और वो रिलेशनशिप डाउन नहीं हो सकती। मतलब इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, इस पे नहीं, हमारे तो नहीं डाउन होंगे भाई। हमारा तो चाइना 1960 से 200 सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप पाकिस्तान का तो सब सेट जा रहा है। देखिए मैं पाकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पुट नहीं करी क्योंकि जियोपॉलिटिकली हम एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कितना खतरा महसूस हो रहा है कि भाई चाइना और इंडिया जो कि एक दूसरे के राइवलरी हैं, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, इंडियन ओशन में भी, पहाड़ों पे भी, दरियाओं पे भी, और आज वो कहते हैं कि भाई लेट्स मतलब ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। चाइना ऐसे कार्टून्स भी दिखा रहा है दुनिया को। बेसिकली वो देखें, वो चाइना बिल्कुल दिखाएगा। चाइना जो है वो बेसिकली एक जो है वो किसी के साथ वो ना बम भेजता है ना किसी को असला देता है, ठीक है। वो बेसिकली अपने इकोनॉमिकली जो है लोगों के साथ रिलेशन प्रोडक्ट देता है, बस वो अपने प्रोडक्ट्स देता है। हाँ। तो उसने रिलेशनशिप सबसे बनाना है। हाँ। आप इसको ना देखें, उसने अपना बिजनेस करना है, वो अपने बिजनेस पे फोकस करता है। मतलब $125 बिलियन का भी उसका इंडिया के साथ लड़ाई में चल रहा है, और लड़ाई के बाद कितना चलेगा आपको कोई डर महसूस नहीं होता? कोई ऐसा नहीं। हमारा बेसिकली उसकी कोर्ट में हम बैठे हुए, वो हमारा मैनेजमेंट और हमारी जो फौज है। हाँ। और चाइना की जो फौज है, हमारे ब्रदर और हम एक है। हमें इंडिया के लिए कितना गुड न्यूज़ देखते हैं कि चाइना और उनके बीच जो है आउटस्टैंडिंग इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर इंडिया और अगर चाइना के हालात अगर ठीक भी होते हैं ना, तो पाकिस्तान जिस तरह अफगानिस्तान और चाइना ने एक हालात ठीक नॉर्मल करवा दिए हैं। हाँ। तो इस जो अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में एक जंग हो, तो वो खतरा नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली चाइना इस खतरे को ख़त्म करना चाह रहा है। ठीक है, आखिरी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शंस की गेम में, क्योंकि ट्रंप इस वक्त
बावला हो चुका है। वो कहता है भाई रशिया और यूक्रेन के बीच मैंने सीज फायर करानी है, इसके लिए भाई मुझे कितनी ही कंट्रीज को क्रश करना पड़े। आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ और सैंक्शन की गेम में क्या ट्रंप अपना न्यूट्रल अलाई इंडिया को हमेशा के लिए खो देगा? वो जो एक इनके बीच ट्रस्ट एलिमेंट है, क्या वो आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप एक बिज़नेस पार्टनर है और एक बिज़नेस प्लेयर है। वो बेसिकली बिज़नेस स्ट्रेटजी खेल रहा है लोगों के साथ। दुनिया उसको समझती है कि शायद वो मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। वो बेसिकली अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है और ग्रेट अमेरिकन और ग्रेट नेशंस के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो फिर इसलिए इंडिया उसको ज़्यादा सीरियस नहीं इसलिए इंडिया ज़्यादा सीरियस है। मेन पॉइंट यही है ना कि ट्रंप को कोई समझाए उधर बैठ के कि उनका थिंक टैंक उनको बताए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर उनको गाइड करें कि सर व्हाट आर यू डूइंग, ठीक हो गया, आप कर क्या रहे हैं, आपको देखना है। आप ऐसे मुंह उठा के किसी भी कंट्री पे सेंक्शंस नहीं लगा सकते। ठीक है, एक अच्छी बात है उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर में निगोशिएशन की और पाकिस्तान इंडिया वॉर को सीज वॉर में कन्वर्ट कर दिया, बट इसका क्रेडिट ये नहीं जाता कि वो ये देख ले कि सिटिंग डक इस वक्त इंडिया बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया था। तो मैं चाहूँ कि मैं भी इंडिया को ही जाके ना उसके केस चला जाऊँ, उस पर ये अप्लाई कर दूँगा, टैरिफ अप्लाई कर दूँ ताकि वो मेरी बातें माने। ठीक हो गया, वो मुझसे असला खरीदे। तो इंडिया बिलो द लाइन आ जाएगा आपको लगता है? नहीं, इंडिया देखें, अगर हम एशिया में रहते हैं ना तो मैं तो इंडिया के फेवर में जाऊंगा। अच्छा। इंडिया को चाहिए कि उनका अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। आपको ठीक हो गया, क्योंकि हम सब अमेरिकन पर डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। ठीक हो गया ना, जब हमारे पास एक सुपर पावर बनने के लिए हमारा एक नेबर कंट्री चाइना अवेलेबल है, तो हम क्यों अमेरिका को चूज़ कर रहे हैं जो हमसे इतने किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ठीक हो गया, मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलकर चाइना को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया फ्री ट्रेड करें, इनको बॉर्डर से फ्री ट्रेड करनी चाहिए। ये क्या वॉर आपस में लगा के अपनी इकोनॉमीज़ को सबको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ठीक हो गया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के, इनको एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक हो गया, और अपनी ट्रेड को जो है वो ग्रोथ दे के दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँचाना चाहिए। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जो ट्रेड वॉर में आपको सही स्टैंड किसका लगता है? नरेंद्र मोदी भी ग्लोबली फेमस लीडर है, ट्रंप भी नो डाउट ग्लोबली फेमस लीडर है। दोनों फेमस लीडर की फाइट में आपको मजबूत कौन दिख रहा है, सही डायरेक्शन में कौन दिख रहा है, और विक्ट्री इन द एंड किसकी है? देखिए, बात ये है कि अगर हम ये देखें ना कि सही डायरेक्शन में या पावर किसके पास है, तो ऑब्वियसली वो अमेरिका के पास एक सुपर पावर बना हुआ है। ठीक हो गया, दूसरा मोदी में ये मसला आ रहा है कि उसके अपने कंट्री में थोड़ा सा इशू है उसका अपना भी, कि थोड़ा वो रिलीजियसली भी टेक ओवर करता है चीज़ों को। ठीक हो गया, मुस्लिम के अगेंस्ट भी जाता है, तो ये थोड़ा सा भी उसको वहाँ पे भी इकोनॉमिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रही है इस वक्त। ठीक हो गया, बट मैं वही कहूँगा कि मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए, इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं। सही बात है। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, इंडिया से मूव होगी इंडस्ट्री, चाइना में चली जाएगी। अगेन आपका ट्रेड वॉर है चाइना के साथ, तो फिर चाइना में क्या करेंगे, आप वहाँ से रिमूव करेंगे तो आपका जो बिजनेसमैन है बेसिकली वो कहाँ चला जाएगा। आपको ये थिंक करना चाहिए। तो ट्रंप एट द एंड विक्ट्री, यही मैं कहूँगा आपको कि ये अभी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सिर्फ ट्रंप से कुछ बातें मनवाने के लिए, नरेंद्र मोदी से कुछ बातें मनवाने के लिए वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पे जो है तंग किया जा रहा है। ठीक हो गया, एट द एंड आप यही देखेंगे, नरेंद्र मोदी मान रहे नहीं मानेंगे तो नहीं, एशियन होने के बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर गैरत का तकाजा भी यही होता है कि हम दूसरों से भीख क्यों लें। ठीक हो गया, माना हमारा कंट्री एक जो उसमें लोन लेते रहते हैं उनसे IMF से। ठीक हो गया, बट इंडिया को चाहिए कि अगर वो स्टैंड लेता है, ठीक हो गया, तो उसकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी। इंडिया तुसी गज वज के खलो जो बिल्कुल अमेरिका के सामने पीछे नहीं हटना, क्योंकि असि पीछे तानु संभाल लांगे हैं। इनकी देखिए, गोरों की ना एक साइकी है, उनकी साइकी ये होती है कि अगर किसी को वो धमकाएं डराएं ना, अगर वो डर जाए ना, वो उसके ऊपर और चढ़ाई शुरू कर देते हैं, और जो इनके सामने खड़ा हो जाए फिर ये उससे डरना शुरू होता है। पंजाबी स्टाइल में ओए तू कौन है? हाँ, पंजाबी स्टाइल में ये कि मुझे आती नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया पंजाबी आती है। खैर दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी कह रहा है कमेंट में शेयर करें। मिलते रहे प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। और देखिए, बनियानुल महसूस हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, लड़ाई के टाइम पे हमारे जज्बात और होते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमी को जज करते हैं ना, फिर हम बिल्कुल सही बात करते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। और पाकिस्तानी अवाम दिल की बड़ी अच्छी है, ज़ुबान की बड़ी सुथरी है, और मन से और दिल से बोलती है। वो ये नहीं देखती कि आया हम ये फेवर में बात इंडिया की कर रहे हैं या ट्रंप की।
जो सच है, इसीलिए हम इसको पब्लिक शो कहते हैं। कोई सच बोलेगा, खरा बोलेगा और न डर होके बोलेगा। यही चीज़ है मेरी चैनल की जान भी है और मेरे शो की पहचान भी। आपकी क्या राय कमेंट में शेयर कर। मिलते अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा।